students, good morning. Now today we go through the chapter number 12, that is pronoun. In the earlier lecture we learn about a and the means articles, mean when we have to use a or an in our sentences. Okay, now today we go through the chapter number 12, that is pronoun. Now what is pronoun? First of all, see pronoun is pronoun. You have to write 10 times the spelling of pronoun in your notebook. Okay, now see, a pronoun is a word that is used in place of a noun. Now what is noun? You know, noun means name of any person, places or thing. Instead of noun you have to use pronoun. Means for an example, if there is a name of a boy Raj, again and again in the sentence instead of Raj you have to write he. As if there is a name of a girl, at a time you have to write she. प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. मीन्स नाउन की जगह हमें क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन. अब प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी. जैसे किसी गर्ल का नाम, नेम ऑफ ए गर्ल, कोई गर्ल का नाम उसमें रिया, तो रिया हम अगेन एंड अगेन वो सेंटेंस में हम बार बार नहीं बोलेंगे. हम क्या लिखेंगे? SHE शी. और बॉय होगा तो HE ही. Now read the following sentences. Rita is a good student. Rita completes her homework every day. Rita has many friends. Rita also dance well. अब हर जगह इसमें सेंटेंस में क्या यूज़ किया हमने? नाउन में रिटा. But now we have to use pronoun. Now see, Rita is a good student. Instead of Rita हम क्या लिखेंगे? She completes her homework every day. She has many friends. She also dance well. अभी मैंने आपको क्या कहा? इंस्टेड ऑफ नाउन हमें क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन में हमारा क्या है? ही, शी, ये सब हमारे क्या है? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सारे हमारे क्या है? प्रोनाउन है. तो दिस इज अ नेम ऑफ ए गर्ल, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? शी. नाउ सी, इन द सेंटेंसेज रीटा हैज़ बीन प्लेस्ड विथ सी. रीटा के इंस्टेड प्लेस पे हमें क्या यूज़ किया हमने? सी. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन नाउ है ना. नाउ सी द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, empathetic pronoun and possessive pronoun. You have to write the personal pronoun spelling 10 times, demonstrative spelling of demonstrative pronoun 10 times, spelling of interrogative pronoun 10 times, spelling of reflexive pronoun 10 times, spelling of empathetic pronoun 10 times and spelling of possessive pronoun 10 times in your notebook. Now first of all I will explain you what is personal pronoun. Pronouns which are used in place of the name of a person, animals and things are called personal pronouns. यानी कि अभी मैंने आपको बताया ना, ही, शी, ये हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. इसमें हमें क्या कहा है? आर यूज इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स. किसी भी एनिमल्स, पर्सन और थिंग्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, पिक इट अप. इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए बुक. इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. अब यहाँ पे क्या बोला है? पिक इट अप. क्या उठाने के लिए बोला है? बुक. अगर कोई भी चीज़ हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स और बर्ड्स, उसके लिए आपको हमेशा इट यूज़ करना है. प्रोनाउन में क्या यूज़ करना है? इट. एक तो इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग थिंग. इंस्टेड ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड इंसेक्ट्स यू हैव टू यूज इट. तो बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो पिक इट अप. Here it is used, it is used in place of a book. It is a personal pronoun. It हमारा क्या है? personal pronoun. There are 3 forms of personal pronoun. अब personal pronoun के भी 3 forms होते हैं. कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब देखो मैं आपको आगे समझाती हूँ फर्दर कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं और थर्ड पर्सन कौन होते हैं. रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशंस बिटवीन अमन एंड वरुण. अब यहाँ पे कुछ बातें दी है जो उन लोगों ने बात करी है उसके बारे में, उससे हमें समझना है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है. I am going to the park to play. Will you come? No, let us wait. When will he come? Now see first one. I am going to the park to play. Will you come? No, let us wait for Raj. When will he come? He will come at 6 o'clock. अब यहाँ पे हम देखो, ये आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन. आई क्या होगा? हमारा फर्स्ट पर्सन. अब उसने सामने पूछा, किसको पूछा? किस दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है? अमन एंड वरुण. तो अमन हुआ फर्स्ट पर्सन और वरुण हुआ सेकंड पर्सन. जैसे आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हो कि चलो आज आप आ रहे हो पार्क में खेलने के लिए, तो आपको आपने फ़ोन किया तो आप हो फर्स्ट पर्सन, आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया ना, तो फ्रेंड कौन होगा? सेकेंड पर्सन. अगर वो किसी और को फ़ोन करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन. Now see, I is the person speaking,
यू इज़ द पर्सन स्पोकन टू और ही इज़ द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी कि आई हमारा क्या जिसने बोला, यू यानी कि स्पोकन टू जिसके बारे में बोला, और ही इज़ द पर्सन स्पोकन अबाउट यानी कि फर्स्ट पर्सन। अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको बोलूँगी चलो खेलने, आप थर्ड पर्सन को, आप तीसरे को भी बोलोगे, तो मैंने आपको बोला तो मैं हुई आई मैं खुद हुई तो फर्स्ट पर्सन, आप हो यू तो यू हुआ सेकंड पर्सन। अगर आप उस बार आप भी किसी थर्ड इंसान को बुलाओगे तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। नाउ विच आर द पर्सनल प्रोनाउन? आई वी आर प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, you is a pronoun of second person, and he she it are pronoun of third person. याद रखना, you have to learn it, okay? I we are first person, you are second person, you is a second person, and he she it are third person. Now come to that, like nouns, pronouns can be singular and plural. pronouns भी कैसे होते हैं हमारे, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। फर्स्ट वन ही विल गो, तो ही क्या है हमारा प्रोनाउन, लेकिन एक ही बॉय की बात की है, सो ये हमारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। नेक्स्ट दे विल गो, वो सारे जाएंगे, ये हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउंस हैव जेंडर, अब ही किसके लिए यूज़ किया जाता है, बॉय के लिए, तो मस्कुलाइन जेंडर मीन्स मेल। शी किसके लिए हम यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए ना, कोई गर्ल हो तो हम क्या लिखते हो सेंटेंस में, क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सी। सो सी इज़ अ फेमिनाइन जेंडर मीन्स फीमेल। इट न्यूट्रल जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर में हम हमेशा आपको क्या यूज़ करेंगे, ईट। अभी मैंने आपको बताया ना, हम ईट किस लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एंड एनिमल्स के लिए भी यूज़ करेंगे। आई एंड यू कॉमन जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल, अगर आप बॉय हो तो भी आप क्या बोलोगे, आई एम ए बॉय, अगर आप गर्ल हो तो भी आप क्या बोलोगे, आई एम ए गर्ल। अगर आप किसी आपके फ्रेंड्स को बोल रहे हो तो आप बोलोगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। गर्ल होगी तो भी यू बोलेगी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और बॉय होगा तो भी वो क्या बोलेगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू बोथ मेल एंड फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, और आई हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, आई भी मेल और फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। अगेन रिमेंबर, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, you is a second person, he she it is a third person, they all are third person. Let us take a look at the various form of personal pronoun. First person, second person and third person, singular, gender and plural. I me, second person में you, third person में he him she her और it. Gender, आई और मी किसके लिए, अगर बॉय हो तो भी, कुछ भी हो तो गर्ल हो तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमन। यू वो भी बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ही हिम मेल के लिए, शी हर फीमेल के लिए, और इट किसके लिए यूज़ करते हैं हम, न्यूट्रल जेंडर के लिए, ओके। प्लूरल फॉर्म में वही क्या हो जाएगा, आई और मी, वी और अस हो जाएगा चेंज होके। प्लूरल फॉर्म में यू हमारा क्या हो जाएगा, यू। थर्ड फॉर्म में हमारा ही शी, अगर बहुत सारे बॉयज हम तो क्या बोलेंगे, दे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, दे और धैम, क्या यूज़ करेंगे, दे और धैम। Now come to the exercise. First, underline the personal pronouns in the following sentence and write the person for each. First one, they are good in studies like him. अब they हमारा क्या है, प्रोनाउन है। हिम भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन वो कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, वो हमें फाइंड करना है। इसमें क्या बोला, राइट द पर्सन फॉर ईच, हमें उसमें पर्सन बताना है कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन। अभी मैंने आपको बोला फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड यू, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही हिम सी हर और इट और दे। तो हिम क्या होगा ना हमारा सेकंड पर्सन, तो हम क्या लिखेंगे, एस और पी। दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, तो हम क्या लिखेंगे, टी एंड पी, टी फॉर थर्ड, पी फॉर पर्सन, ओके। Second one, Sonia has gone to the market with her. हर क्या है हमारा, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन वो कौन से में आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हर हमारा है थर्ड पर्सन, क्या है, थर्ड पर्सन, सो यू हैव टू राइट टी एंड पी। थर्ड वन, आई लिव विद देम इन दैट विलेज। आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, आई इज योर फर्स्ट पर्सन, सो राइट एफ फॉर पी, एफ फॉर फर्स्ट एंड पी फॉर पर्सन। धैम क्या है हमारा, धे और धैम हमारे क्या है, थर्ड पर्सन। यू शुड, फोर्थ वन, यू शुड नॉट वरी अबाउट हिम। यू हमारा सेकंड पर्सन एक ही होता है, कौन सा होता है, यू इज योर सेकंड पर्सन, एंड हिम इज योर सेकंड थर्ड पर्सन, विच इज हिम इज योर थर्ड पर्सन।
द डॉग इज हर्ट सो इट इज लीपिंग, द डॉग इज हर्ट सो इट इज लीपिंग। अब इसमें हमारा क्या है, सो इट है ना, इट इज योर, अब हम एनिमल्स की बात की है तो इट कब यूज़ किया जाता है, थर्ड पर्सन में। कब यूज़ किया जाता है, थर्ड पर्सन में। तो ये हम इट हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन। सो राइट टी एंड पी, टी फॉर थर्ड, THIRD थर्ड, एंड पी फॉर पर्सन। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज, fill in the blanks with appropriate pronouns. According to the sentence you have to use proper pronouns. First one, Subh and Manoj are friends. This is a plural sentence. अब दो फ्रेंड की बात की है तो हम क्या लिखेंगे, they live in Chandigarh. Next one, Nita is a good student, full stop, dash, stand first in class. Nita is the name of a girl. So instead of Nita, what you have to write? You have to write SHE, she. Third one, we know Mr. Mathur, dash is our neighbor. Mr. Mathur, this is the name of a person, boy. So what you have to write? You have to write he is our neighbor. Fourth one, Vinit is not alone, Jay and Vinay are with. वो विनीत इज नॉट अलोन यानी कि वो अकेले नहीं है, जय एंड विनय आर विथ, उनके साथ है। तो क्या आएगा, दोनों बॉय है तो हम क्या लिखेंगे, विथ हिम, HIM, हिम। गेट द फाइल, दिस द बॉस वॉन्ट्स डैश नाउ। अब फाइल है, फाइल वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट, द बॉस वॉन्ट्स इट नाउ। Now come to the another pronouns, that is demonstrative pronoun. Which are the demonstrative pronoun? These, THIS, these. Yes, when you are using THIS, these some singular sentence हो तो हम क्या यूज करते हैं, THIS, these. This is a those किसके लिए यूज किए जाते हैं, प्लूरल सेंटेंस में। these are pencils, ये भी हम कब यूज़ करते हैं, प्लूरल सेंटेंस में। डैट का भी हम कब यूज़ करते हैं, सिंगुलर सेंटेंस में। ओके, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, दीज, दोज, दीज एंड डैट। दीज, THESE, these, that and those are pronouns since they point out to object or object that they refer to, they are called demonstrative pronoun। वो ऑब्जेक्ट यानी थिंग्स के लिए होता है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट मीन्स थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point out the object or object which is referred to। demonstrative pronoun में हम क्या, किसके लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए। Now come to the another topic, so you have to remember 4 demonstrative pronouns, THIS, these, 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 THOSE, those and THAT, that। ये सारे 4 हमारे क्या है, demonstrative pronoun। Now see how to use in the sentences। Demonstrative pronouns and demonstrative adjective। Now one thing you have to write in your notebook, write down the spelling of demonstrative 10 times in your notebook। और demonstrative pronoun तो हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए, मीन्स थिंग्स के लिए। These, that, those and those are also used as demonstrative adjective। This pen has a blue ink, ये पेन है, this pen यानी कि ऑब्जेक्ट बताने के लिए। दिस इज द पेन दैट हैज ए ब्लू इंक, अगेन क्या वो यूज़ किया है, नाउन क्या है हमारा, पेन, पेन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, दिस। अगेन हमारा क्या है, दिस इज द पेन दैट हैज ए ब्लू इंक, सिंस इट स्टैंड्स फॉर द नाउन। लेकिन दोनों चीज़ में क्या बता रहा है, नाउन के लिए ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स आस्किंग अ क्वेश्चन। विच आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, व्हाट, whom, which means when you are asking anyone to question। An interrogative pronoun is a pronoun which is used for asking a question। क्वेश्चन पूछने के लिए, what is your name, where are you doing, what are you doing, where are you living, are you happy or not, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, interrogative pronouns। okay, in this sentence the word who, WHO who, WHAT what, WHOM whom and WHICH which are pronouns, they are used for asking question and are known as interrogative pronouns। See the example of interrogative pronouns, which pen is yours, which is your pen, these all are interrogative pronoun। Interrogative adjective since it qualifies a noun। An interrogative adjective is placed before a noun, an interrogative pronoun is placed before a verb। interrogative adjective is placed before a noun, noun से पहले हम interrogative adjective यूज़ करते हैं और interrogative pronoun after before a verb, verb से पहले यूज़ करते हैं, before a verb and before a noun।
Now come to the another one topic, that is reflexive pronouns and empathetic pronouns. Sorry. Reflexive pronouns are used when the object of the verb is also the subject of the verb. Now what you have to do in reflexive pronoun, so now you have to write the spelling of reflexive 10 times in your grammar notebook. Now what is reflexive? Are used when the object of the verb is also the subject of the verb. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का वर्ब सेम होगा तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई हेल्प्ड माई सेल्फ, इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेल्प्ड. हेल्प्ड हमारा क्या है, वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये दोनों, ये हमारा क्या है, वर्ब है. माई सेल्फ एंड आई स्टैंड फॉर द सेम पर्सन. माई सेल्फ और एंड आई बोथ आर स्टैंड फॉर द सेम पर्सन. किसके लिए खड़े हैं ये लोग, हेल्प करने के लिए, आई और माई सेल्फ. सो द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट. दे हर्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग द गेम. अब देमसेल्फ क्या है ये, इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हर्ट. हाँ यहाँ पे वर्ब क्या है, हर्ट. किसके लिए खड़े हैं ये दोनों, देमसेल्फ एंड दे स्टैंड फॉर द सेम पर्सन. एक ही पर्सन के लिए दोनों इंसान खड़े हैं. अब आपको मैं शॉर्ट में आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लर्न करने हैं. कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड themselves आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दिस ऑल आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब भी आपको सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स दिखाई दे तो उसको वहाँ पे अंडरलाइन करना और उसके नीचे आपको लिख देने का आर एंड पी. आर एंड पी मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ सी एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन टू ड्रॉ अटेंशन और जस्ट टू एम्पैथेटिक, यानी कि उनका ध्यान खींचने के लिए. I myself solved the sum. Empathetic pronoun and reflexive pronoun, they both are same. Now see the table. Read the table given below to understand more about reflexive pronoun. आपको reflexive pronoun में क्या, the first singular, first person हो तो you, second person, first person sorry I, second person is you and third person he, she, it, ये आपको मैंने भी बताया. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब खुद के लिए से फर्स्ट पर्सन होगा तो माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन पे आएगा तो क्या आएगा, योर सेल्फ, और थर्ड पर्सन में अगर बॉय है तो हिम सेल्फ, गर्ल है तो हर सेल्फ, और इट है तो इट के लिए क्या होगा, इट सेल्फ. ओके. नाउ प्लूरल फॉर्म, आई का क्या होगा, फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा, यू, और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएंगे, दे, प्लूरल फॉर्म में होगा. तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वी का जब भी सेंटेंस में वी है तो हमें क्या करना है, उसका अवर सेल्फ, you, yourselves, and they will change to themselves. This table you have to learn it. Okay. Now come to the exercise. Fill in the blanks with correct reflexive or empathetic pronouns. कौन से एम्पैथेटिक प्रोनाउंस है हमारे, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे हमारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई है तो आई के लिए हम, आई इज योर फर्स्ट पर्सन. आई जब भी हो सेंटेंस में तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक में, माई सेल्फ, खुद के बारे में. अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माई सेल्फ. सुहाना ऑर्गेनाइज द पार्टी. नाउ दिस इज द नेम ऑफ ए गर्ल, तो गर्ल का नेम है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हर सेल्फ. सो यू हैव टू राइट हियर हर सेल्फ. दे हेल्प डैश एट द डिनर टेबल. दे इज योर थर्ड पर्सन. सो व्हाट यू हैव टू यूज फॉर दे चेंज टू, प्लूरल फॉर्म में है तो दे विल चेंज टू themselves. So you have to write here them, 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 selves, themselves. Fourth one, I is the first person. So first person के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, myself. I myself manage the show. Fifth one, you should go yourself and look for the lost party. अब you है, you is your second person, so you will change to in reflexive pronoun. What you have to write, yourself. If you understood this table then you are able to solve this exercise easily. ग्रामर को कभी लर्न नहीं करते हैं, ग्रामर को समझना, ये टेबल आप लर्न कर लेना. आई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी, हिम, ही शी और इट, ये हमारे क्या हैं, थर्ड पर्सन है. तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आई विल चेंज टू माई सेल्फ, यू विल चेंज टू योर सेल्फ, ही विल चेंज टू हिम सेल्फ, शी विल चेंज टू हर सेल्फ एंड इट विल चेंज टू इट सेल्फ. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Circle the pronoun in the following sentence and write whether they are
पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक, ये दोनों सेम है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन जहाँ पे भी होंगे विच, व्हाट, वेयर, ये सारे हमारे कौन से हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी मैंने आपको बताया, हियर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन तो आपको पता है। फर्स्ट वन, ही हिमसेल्फ इज द बेस्ट जज। अब ही है, ही हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड, दिस पेन बिलोंग्स टू हिम। हिम कब अब हम यूज होते हैं, हिम भी पर्सनल प्रोनाउन, अंडरलाइन इट। नेक्स्ट वन, वी हेल्प्ड हिम विद द वर्क। अगेन हिम क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। दैट इज द पार्क आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अभी मैंने आपको बताया डैट, धीज, डोड, ये क्या, ये धोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपको क्या लिखना है, डी एंड पी। डबल दो बार मैंने पी लिखा है, मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है पर्सनल की स्पेलिंग, ओके। अब ब्रैकेट वहाँ पे हेडिंग में से देख के। फिफ्थ वन, हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम। हु, तो हु कौन सा प्रोनाउन होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव, सो यू हैव टू राइट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने आई और पी लिखा। In this way you have to solve 6, 7, 8, 9, 10 sentences at your own, try it, okay। एंड मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है आपको DP मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, PP मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, IP मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यू हैव टू राइट द फुल स्पेलिंग, okay students, thank you, bye bye and take care।